So, welcome all. We all move ahead with our next part of this chapter, and that's related to your rise of independent nation in Asia and in Africa. Is how various nations started getting its independence from the hands of Britishers and the other European nation. So, first is related to Asia. सबसे पहले जो कंट्री जिसे इंडिपेंडेंस मिला that was India in 1947. And the freedom struggle was not short term, it was a very very long term freedom struggle. बहुत सालों की struggle के बाद freedom मिला था हमें. And due to British policy of divide and rule, और ब्रिटिश की बहुत एक अच्छी पॉलिसी वो खेल चुके थे हमारे साथ, दैट वाज डिवाइड एंड रूल. और बहुत बाकी काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से कंट्री को डिवाइड होना पड़ा, एंड या हम कह सकते डिवाइड करना पड़ा, एंड नेमली इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947. In the same way, with continuous struggle against Britishers, countries like Sri Lanka, Myanmar, they also got independence in 1948. Then, in case of Indonesia, of course, UN played a great role in 1949 to provide and to help it in getting independence. Asian countries like Laos, Cambodia, Vietnam also got independence. So 1947 शुरुआत इंडिया से हुई इंडिपेंडेंस की आफ्टर लॉन्ग 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 फ्रीडम स्ट्रगल. लेकिन एक बहुत ही दुख भरा इवेंट भी साथ में हुआ कि इंडिया को डिवाइड होना पड़ा था, जैसे मैंने कहा, या कर लिया गया था बाय डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज. ऑलरेडी बहुत पहले से ये गेम खेल रहे थे ब्रिटिशर्स हमारे साथ. एंड सो टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, फ्रॉम दैट सिंगल इंडिया. Then the other country that got independence from the hands of Britishers or from the clutches of Britishers was Sri Lanka, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam. और इंडोनेशिया के केस में तो स्पेशल एक रोल प्ले किया था यूएन ने टू प्रोवाइड इट और टू हेल्प इट इन अचीविंग इंडिपेंडेंस. Now let's see about African countries. The Second World War proved to be a good sign. I would say, you may not write Omain, you can write SIGN, sign. It proved to be a good sign for the enslaved nations of Africa. Enslaved मतलब कि जो already slave बन चुकी थी, नौकर बन चुकी थी, शिकंजे में थी, या hold, the other countries had hold on Africa, on African nation. तो वो African nation के लिए तो Second World War एकदम you can say it was a good sign. And after Second World War, countries like Ethiopia, जैसे पहले एबिसिनिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, दे गॉट इंडिपेंडेंस. सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन एशियन कंट्रीज इंस्पायर द अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू. अब जैसे एशियन कंट्रीज में फ्रीडम स्ट्रगल चली, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को फ्रीडम मिलना शुरू हुई, तो अफ्रीकन कंट्रीज भी इंस्पायर हो गई. इट रिजल्टेड इन दैट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ 16 years. और रिजल्ट क्या है कि इन 16 साल के टाइम पीरियड में, दैट इज फ्रॉम 1951 to 66, or 1950 to 66, you can take 40 small and large nations, they got freedom. There was a struggle in those countries. Somewhere there was bloodshed, somewhere there was no bloodshed, somewhere there was वायलेंस के बाद स्ट्रगल मिली, कई जगह पे पीसफुली उनको फ्रीडम मिल चुकी थी. एंड इंपीरियलिस्ट कंट्रीज, लेट मी टेल यू वंस मोर, वैसे तो अब तक 8 महीनों में काफ़ी बार बोल चुकी हूँ मैं मीनिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म या इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज. तो चलो फिर से एक बार और कह लेते हैं, शायद तुम्हें याद आ जाए, बिकॉज you will not go backward to all those history videos and you are not going to find out कि कौन से वीडियो में कहाँ पे मैम का डायलॉग था. What is imperialism? I would say today in this lecture itself, you can pause it, just get your book and pen. As I always say, keep a book and pen at your reach on the table or very close to you where you're sitting to watch the video, so that you can write down your doubts over there, chapter number, date, and doubt. Ask it in the next lecture or after you complete seeing the video. Just give a call to me and clear your doubts at the same moment, right? Same day itself. So imperialism is a term. Imperialist countries, तो चलो इसको हम समझते हैं. Those countries which are rich and strong, take over the hold of those countries that are rich but weak.
they take over the control of those countries either by force or by fraud, right? And these countries are termed as imperialist countries, जो hold ले लेती है दूसरी countries का, either cheating करके, like how Dalhousie did with Jhansi Rani, just by giving fake reasons. बाकी कई राजाओं को इंडिया में ये कहा गया कि भाई यू आर मिसमैनेजिंग योर किंगडम, सो नाउ योर किंगडम इज आवर्स. किसी को कहा कि आपने हमसे काफी लोन लिया, यू आर नॉट रीपेइंग इट, सो नाउ योर किंगडम इज आवर्स. झांसी रानी को बताया गया कि आपके खुद का कोई बेटा नहीं है, यू कांट हैव एन अडॉप्टेड सन टू सिट ऑन द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हस्बैंड. सो there was a fight between them and then Jhansi was taken over by the Britishers. तो इस तरह से चीटिंग से उन्होंने कई जगह पे ले लिया. कई जगह पे अगर कोई होशियार राजा या रानी थी तो खींच के मार धाड़ करके ले लिया उनसे, विथ वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट देम, लाइक टिपू सुल्तान एंड ऑल. झांसी रानी के सामने भी चीटिंग भी की एट द सेम टाइम, वॉर भी किया था. So this is what I'm trying to say is imperialism is a term, and imperialist countries, one and the same. It means those countries that are rich and powerful take over the hold and control of those countries that are rich but weak, right? Like India, best example. And so these imperialist countries tried to have supremacy over these countries. तो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज ने बहुत कोशिश की, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब ने बहुत कोशिश की कि हम ये छोटी मोटी वीक कंट्रीज, लेकिन रिच कंट्रीज को वैसे तो हमने डिस्ट्रॉय कर ही चुके हैं हम इतने 200 सालों में, बट अभी भी कुछ बाकी है. तो चलो यू नो दैट पावर का जो एक नशा रहता है कि भाई यस we are powerful and we are having 100 countries under our control या 10 countries under our control, उनसे दो ज्यादा है हमारे power. So this is what superpowers and the other, like England and France especially, they were the imperialist countries. So they wanted to prove their supremacy over the other countries. लेकिन 1945 के बाद जो स्ट्रगल चली तो इंडिया को इंडिपेंडेंस सबसे पहले मिला 47 में, फिर बाकी एशियन कंट्रीज को उनको देख के तो हिम्मत आ गई अफ्रीकन नेशन में भी. दिस कंट्रीज जो बच चुकी थी, राइट, जिसके ऊपर अभी भी इंपीरियलिस्ट कंट्रीज की नजर थी, छोटी मोटी अफ्रीकन कंट्रीज एंड ऑल, तो उनको लगा चलो अभी सुप्रीमेसी कंटिन्यू करेंगे. लेकिन इन कंट्रीज ने ऐसा कुछ किया कि इंपीरियलिस्ट कंट्री लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस कुड नॉट हैव द कंट्रोल ऑन देम. तो ये छोटी मोटी कंट्रीज ने क्या किया, दे वर नाउ अंडर फियर ऑफ द सुपर पावर. अब सुपर पावर दो थे, दो खड़े रह गए. वन वॉज सेइंग लाइक यूएसएसआर कि आ जाओ हमारे पास, वी गिव यू 4 खरीदो 1 फ्री. अमेरिका ने कहा 3 खरीदो 1 फ्री. यूएसएसआर दैट इज रशिया ने कहा 2 खरीदो 1 फ्री. अमेरिका ने कहा 1 खरीदो 1 फ्री. एंड देन ईच वन, रशिया ने कहा आ जाओ सब कुछ फ्री, और उससे भी ज्यादा दिया अमेरिका ने शायद, वी प्रोवाइड यू द लेटेस्ट वेपन्स एंड आर्मी एंड ऑल. ये करते 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 दोनों सुपर पावर, एक कम्युनिस्ट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो कहे वो ही हो, सब कुछ गवर्नमेंट का, लाइक आई टोल्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर, बीआरटीएस, म्यूनिसिपैलिटी स्कूल, म्यूनिसिपल या गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लाइक यू कैन से सिविल हॉस्पिटल, दैट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल. कोई सैल या शैल भी ऐसा कुछ होगा नहीं. वेरएज अमेरिका में दोनों होगा, बट ज्यादातर लग्जरी, प्राइवेट प्रोडक्ट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, और गवर्नमेंट का काम होगा सिर्फ वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, जो who are of at a lower level economically, उनको थोड़ा सपोर्ट करना. बाकी अमेरिका टोटली डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इम्प्रेस कंट्री वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो तो सुप्रीम पावर रही ही नहीं थी. फिर भी उन्होंने काफी कोशिश की कि हम इंडिया पे होल्ड बनाए रखें, हम दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज पे होल्ड बनाए रखें, लेकिन ये नहीं हो पाया. इंडिया ने तो मिडवे अडॉप्ट कर लिया था कि ना अमेरिका के साथ गए ना रशिया के साथ, उसने एक बीच का रास्ता अपना लिया, राइट, दैट
we will support all the countries on the planet and we will take the support of all, but we will not be under the rule of any country. We don't want to join any superpower. नहीं तो इतने सालों के बाद जो कड़ी मेहनत करके जो इंडिपेंडेंस मिली है वो फिर से किसी एक सुपर पावर के अंडर हम हो जाएंगे. सो वी वांट टू चूज आवर ओन पाथ ऑफ डेवलपमेंट. तो हम इससे हम कहेंगे हमने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता ढूंढा. अलाइनमेंट मतलब टू बी विथ. नॉन अलाइनमेंट मीन्स टू बी अवे फ्रॉम, not to align with, not to be with someone. Stand on your own feet and move ahead and progress. That is what we did. So once again, imperialist countries tried to have supremacy over these countries. But these countries either joined the superpower or military resources and got their freedom. तो ये फिर छोटी मोटी अफ्रीकन कंट्रीज ये जाके सुपर पावर के साथ वो एक हो गई, जैसे बुला रही थी, राइट? ये बुला रही थी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ना, दे वर कॉलिंग दिस वे. बड़े बड़े ना, यू गो टू, मम्मी को ही पूछ रहा, शॉपिंग के लिए निकलते हैं एंड दे सी कि एक दुकान में है 2 पे 1 फ्री, बाजू वाले ने लिखा है 1 पे 1 फ्री, तो वहां पे सब कुछ डाल के मम्मी दौड़ेगी 1 पे 1 फ्री वाली शॉप में, चाहे वो अच्छा हो ना हो, लेकिन लिखा क्या है 1 पे 1 फ्री, एंड देन शी इज गोइंग टू रन, राइट? सेम द स्मॉल कंट्रीज डिड, वीकर कंट्रीज, कि कहीं ना कहीं कभी हमें अमेरिका ने हेल्प किया था या कभी हमें यूएसएसआर ने हेल्प किया था, तो अपने अपने थैंकफुलनेस के लिए भी वो जाके उनको ज्वाइन हो गए. कई बार they went and joined the military resources also and they achieved their freedom. Now, non-aligned movement जो इंडिया ने फॉलो किया. Some new nation adopted a policy of not to be with, not to align with any of the 2 power blocks and military blocks. जैसे नाटो, सीएटो, सेंटो, इनके साथ उनको नहीं रहना था, ना अमेरिका के साथ रहना था, ना इंग्लैंड के साथ, ना फ्रांस के साथ, ना यूएसएसआर के साथ. तो सच कंट्रीज लीडरशिप ली इंडिया ने उसमें. They decided that they would maintain equal distance with both the superpower. और इन non-aligned movement follow करने वाली non-aligned countries, nations, उनको नाम दिया गया non-aligned nations. उन्होंने डिसाइड किया कि हम equal distance maintain करेंगे with Russia and America. These nations were thus known as non-aligned nations. और उन्होंने जो policy follow up की was called as non-aligned policy. Now, what is policy? For example, say that my policy with different people will be different, of giving a smile and talking and all. So this is my every example. चलो start करते हैं. यहाँ पे हम let's take sorry, let's take चलो एक बाजू श्रेय को लेते हैं, एक बाजू हम ले लेते हैं मिस्टर पटवा, जश पटवा, ठीक है? Don't feel bad other people. These are just instantly the name that came to my दिमाग में. तो let's start. यहाँ हम लेंगे दवे and झीणू, my 2 झीणूस, या मोनिश, या वंश and दीवी and परम सोनी and परम खत्री भी है, फिर और एक परम है, फिर और भी एक परम है. Then there are not many. तो सबके नाम तो नहीं लूंगी, but yes, let me pick up these 2 children. या अगर बुरा लगे तो हम ले लेते हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. Now this Mr. A, उसके एक फ्रेंड, उसकी बर्थडे पार्टी है और वो मिस्टर बी से इतने मिलते जुलते नहीं, ठीक है, हाय हेलो इन स्कूल. नाउ मिस्टर ए हैज फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, तो एक दिन सब एक क्लास के ही हैं. अब मिस्टर बी भी आगे कि कहीं पे एक बेंच पे रिसेस में बैठे हैं, सब सुन रहे हैं उनकी बातें, 1-2 बेंच नजदीक में ही बैठे हैं. अब मिस्टर ए के साथ ग्रुप बैठा हुआ है बेस्टीज का एंड मिड बेस्टीज का, मतलब बहुत बेस्ट फ्रेंड्स और थोड़े बहुत ठीक ठाक फ्रेंड. अब ये पार्टी के अनाउंसमेंट कर रहा है रिसेस में कि चलो चलो टुमारो इज माय बर्थडे पार्टी एट माय रेसिडेंस, यू ऑल विल कम. और सबको बड़ी बड़ी स्माइल देके बोल रहा है आ जाना करके, नेचुरली, ठीक है. फिर थोड़ी दूरी पे थोड़े 4-5 बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जो उसके
ओके ओके फ्रेंड्स है, उसको भी उसने स्माइल देके बुलाया, लेकिन ओके आप भी आ जाना, आप भी आ जाना, मतलब यू ऑल्सो कम। आगे वाले बेस्टीज को गले लगा लगा के बुलाया, दूसरे वाले को बेटा दांत दिखा के बुला लिया। अब और 2-3 बच्चे थे, उनको भी जाके एक छोटी सी स्माइल देके बुला लिया। और अब मिस्टर बी बैठे, चलो उसके साथ मिस्टर सी भी है, तो मिस्टर बी और सी को तुम भी आ जाना, ठीक है। हार्डली अ स्माइल, हार्डली, स्लाइट सी मुश्किल से जबरदस्ती वाली स्माइल। भाई बुरा लग जाएगा, सबको बुलाए, इन दोनों को ना ना कहे तो ना, रहना तो एक ही क्लास में साथ में हमें। नाउ कम्स द शॉपिंग टाइम। अब उस दिन घर जाके बच्चे मम्मियों का जी खा लेते हैं, कल बर्थडे पार्टी में जाना है, ये लेंगे वो लेंगे। अब जो बेस्टीज है उनको तो पता ही अपने बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे मिस्टर ए की, तो वो तो 1 महीने पहले से तैयारी कर चुके थे, कुछ ना कुछ अच्छा सा ला के डाल दिया, 500 रुपए का, 600 रुपए का, वॉट एवर, 300 400 वॉट एवर। अब जो ठीक ठाक वाले थे जिनको मिला था इनविटेशन विद अ बिग स्माइल, दांत दिखा के, वो उस दिन दोपहर को स्कूल से घर जाके कहेंगे मम्मा गिव अस 100 सब लोग हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो 1000 रुपए तक की हम 10 लोग ले आएंगे। तो चलो सबने निकाले 100 आगे में एक एक ने 300 400 500 निकाले, यहाँ पे एक एक ने 100 निकाले, डिपेंड्स ना, एक अलग अलग लेवल है फ्रेंडशिप की। एक पे गले लग रहे हैं तो 500 वाली गिफ्ट ना, 500 500 500 निकाले। एक जगह पे बिग स्माइल वाली, दांत दिखाने वाली, 100 रुपए निकाले 10 लोगों ने या 5 लोगों ने, और एक 500 की गिफ्ट ले आए। अब थोड़े और, चलो दांत नहीं दिखाते, खाली स्माइल। वैसा एक ग्रुप है 3-4 बच्चों का, उन्होंने कहा यार 50-50 निकाल लेना भैया, ठीक है। अब आए मिस्टर ए बी एंड सी, वो घर पे गए, मम्मी कहेगी तारो फ्रेंड छे खास, बच्चा कहेगा ना मम्मी, बैठे थे साथ साथ बुला लिया, लेकिन पार्टी में तो जाना है, मस्त एंजॉय करेंगे, खा पी के आएंगे, ठीक है। कबड़ में से निकल, लास्ट ईयर तेरी जो गिफ्ट आई थी अच्छी नहीं लगी थी, रीपैक करके ले जा। सी दिस इज द पॉलिसी, और तुम रोगे भी नहीं, क्यों, दूर का कोई, हाँ ठीक है, बुला लिया, इतनी कोई फ्रेंडशिप तो है नहीं, कभी साथ में बैठे नहीं, बोले नहीं, एक क्लास में है, बुला लिया, जाते हैं, खाएंगे पिएंगे, जल्द से उड़ाएंगे और वापस आ जाएंगे, नॉट इंटरेस्टेड इन गिफ्ट। तो बी और सी क्या करते हैं, अपने अपने घर से अपनी पुरानी लास्ट ईयर या 4 साल पहले वाली गिफ्ट, जो स्मार्ट मम्मी जो करती है, आई यूज टू डू द सेम थिंग। इफ चिल्ड्रन डोंट लाइक वी रीपैक इट विथ अ नाइस गिफ्ट कवर एंड ऑल, और दे देते हैं किसी और के यहाँ। तो ये तोहफा घूमता रहता है, तोहफा 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 तोहफा। एक बहुत मस्त ऐड आती थी कि मिस्टर ए को सर से यहाँ पे मिस ए को एक गिफ्ट मिली, मम्मी कहते हैं ठीक है रवा देना, कोई नहीं, बर्थडे में आप ही दे जे बेबी, अच्छी नहीं है इतनी कुछ खास, बेबी अच्छी है मान गई, पैक कर लिया, तोहफा गया कहीं और, वो तोहफा वापस रीपैक कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और, तोहफा 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 तोहफा, वापस मिस ए के यहाँ वही तोहफा आया टूटा फूटा। दिस इज वॉट एवरीवन डज। देखिए तुमने यहाँ पे मेन रूट क्या है, मेन बेस क्या है इस तोहफा तोहफा वाली लंबा सा एग्जाम्पल देने में, दैट पॉलिसी, 10 बच्चों की बेस्टीज की पॉलिसी क्या थी, भैया 500 500 निकालते हैं। दांत दिखाने वालों की बेस्टीज वाली की, फ्रेंडशिप वालों की क्या पॉलिसी थी, दांत दिखा के स्माइल दी, 100 रुपए निकालते हैं। बाकी के बिना दांत दिखाए स्माइल दी, 50-50 निकाले। दूर वाली फ्रेंडशिप वाली जो जबरदस्ती के बुला लिए क्योंकि क्लास में सुन रहे थे, साथ में बैठे थे इनविटेशन टाइम पे, तो उनको बुला लिया, तो वो मिस्टर बी और सी की पॉलिसी थी तोहफा 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 वाली, किसी का दिया हुआ हम दे देंगे, दैट इज ओ ये पॉलिसी।
तो तुम्हारी पॉलिसी अलग है, मेरी पॉलिसी अलग है, हम सबकी पॉलिसी अलग होगी। हमारे साथ बहुत क्लोज रिलेशन किसके हैं, उनको हम ज्यादा डिस्काउंट देंगे एज इंडिया एज अ कंट्री वाइल एक्सपोर्टिंग, and same way when we import we get good support from those countries who are our besties, but those who are a bit of far off from us but still we continue with export import, तो वहां पे हम कम डिस्काउंट देते हैं या कम डिस्काउंट मिलता है। दैट्स द पॉलिसी ऑफ ईच कंट्री, राइट। तो यहाँ पे पॉलिसी का मतलब मैंने तुम्हें समझाया। वैसे ही नॉन अलाइन कंट्रीज ने अपनी अलग पॉलिसी बनाई और उस फॉरेन पॉलिसी को हमने नाम दिया नॉन अलाइन पॉलिसी। दोज न्यूट्रल कंट्रीज, न्यूट्रल मतलब जो ना अमेरिका का साथ दिया उसने, ना मतलब साथ देने के लिए रेडी था कि भाई जरूरत पड़ा हमें बुला लेना, हमें जरूरत हो गया हम आपको बुला लेंगे, लेकिन ना तो रशिया में ज्वाइन हुए वो, ना अमेरिका में। रशिया के साथ भी फ्रेंडली टर्म्स रखे जस्ट लाइक अमेरिका, बट यहाँ पे रशिया ने सपोर्ट किया इंडिया को, अमेरिका वेंट अगेंस्ट इंडिया। लेट्स सी हाउ। तो ये न्यूट्रल कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड ऑल नॉन अलाइन कंट्रीज, so those neutral nations that didn't want to adopt the ideologies, the path, the thoughts, the thinking of either of the two superpowers of the world, wish to have an all-round development. उन्होंने क्या विश किया कि किसी के अंडर रह के फिर से वो कहे वैसे ही अगर जिंदा रहना है तो ब्रिटिशर क्या बुरे थे, ठीक है ना। सो लेट अस हैव आवर ओन ड्रीम्स and let us fulfill our own dreams with our own strength, though it may take some longer time, but we will have all-round development on our own. So this countries also wish to have an all-round development, maintaining its unique existence, और हमारा खुद का एक नाम होगा इस planet पे। It will not be like India is still ruled by America or Russia, but India as a country, independent, unique existence वाली country, India. So maintaining its unique existence. Under the leadership of India's first PM Jawaharlal Nehru, Indonesia's first president Sukarno, Egypt's second president that is Gamal Abdel Nasser, Ghana's first president Kwame Nkrumah, and Yugoslavia's president Josip Broz Tito got a thumping support for the movement. Thumping matlab 100% you can call it. I would not say 100, but majority, maximum you can call maximum. Got a thumping matlab maximum support for this movement. That is non-aligned movement. In this non-aligned movement or organization, फिर council बना उनका अलग, organization बना जिसमें 23 countries of Asia and 6 countries of Africa became the members and they were present. The organization was founded in Belgrade in 1961, known as NAM, Non-Aligned Movement. Under the leadership of PM, that time Prime Minister Jawaharlal Nehru, the policy of non-alignment was फ्रेम। अब इस नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज की क्या पॉलिसीज होगी देखेंगे बाद में। नाम कंप्लीटेड वैल्यूएबल लीडरशिप, अब इसमें अच्छी खासी लीडरशिप भी थी जवाहरलाल नेहरू जी की। नेहरू बिलीव दैट मूवमेंट कंटिन्यूज टू सी अ रोल फॉर इटसेल्फ, और इस मूवमेंट में सबको पता चल गया कि रोल क्या होगा, नेचुरली नॉट टू बी विथ सुपर पावर बट बी योर ओन स्ट्रेंथ एंड डेवलप ऑन योर ओन। एज इन हिज व्यू, the world's poorest countries remain exploited and marginalized, no longer by opposing superpowers, but rather in a unipolar world. And it is Western hegemony and neocolonialism that the movement has really realigned itself again. इसका तो मीनिंग मैं भी फाइंड आउट कर लूंगी, फाइंड आउट करूंगी नहीं, आई टेल यू, तुम अपने हिसाब से कोई अलग वर्ड फाइंड आउट कर लेना। अब Nehru believed that movement continues to see a role for itself. मतलब ये मूवमेंट तो अपने आप के लिए रोल देखती ही रहती है, क्योंकि उसके व्यू में सबसे गरीब जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो तो हमेशा एक्सप्लॉइट ही होती रहती है, राइट। एंड नाउ नो लॉन्गर बाय अपोजिंग सुपर पावर रादर इन यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यहाँ पे तो 2 सुपर पावर आ गए, और already there were Western European countries that were destroying these countries already, and there was colonialism, लेकिन अब हम colonialism को accept नहीं करेंगे, imperialism को allow नहीं करेंगे entry लेने में, and the movement has really realigned itself again. अब ये movement एक अच्छी तरह से उसने अपने आप को फॉर्म किया है, अपने जो गोल्स हैं, अपना जो ओपिनियन है वो उसने बता दिया है वर्ल्ड को। It opposes foreign occupation. It doesn't allow foreigners to interfere in our matter. Interference in internal affairs. हमारे internal matters में भी interference नहीं होगा उनका.
एग्रेसिव यूनिलेटरल मेजर्स, ना तो वो हम पे जोर जुल्म कर सकते हैं, बट इट हैज ऑल्सो शिफ्टेड टू फोकस ऑन सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो हमने सिर्फ इतना अपोज नहीं किया, हमने ये भी ध्यान रखा है कि ये हर एक कंट्री सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को हम फेस करें, जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, बिजनेस में, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसे हम फेस करेंगे। So, but it has also shifted to focus on the social economic problems of these member countries, especially the inequality shown by globalization and implication of neoliberal policy. अब यहाँ पे नॉन अलाइन कंट्रीज ये ध्यान रखेगी कि ये सारी जो मेंबर कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, उसको हम डेवलप करें, उसके सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, हम इकोनॉमिक चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, दैट वी विल सी टू इट, उनका डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी कम हो जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, इनजस्टिस ना हो कंट्रीज में। द नॉन अलाइन मूवमेंट हैज आइडेंटिफाइड इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, पॉवर्टी, सोशल इंजस्टिस एज अ ग्रोइंग थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी। अब पीस और सिक्योरिटी होगी नहीं अगर ये सारी कंट्रीज में डेवलपमेंट ना हुआ, पॉवर्टी नहीं हो, पॉवर्टी बढ़ती रहेगी या सोशल इंजस्टिस होगा, तो कहीं पे पीस होगा ही नहीं। देयर बी ऑलवेज स्मॉल एंड बिग डिस्प्यूट्स एंड वॉर्स एंड ऑल, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी लोगों को। तो नॉन लाइन मूवमेंट की अपनी पॉलिसीज बनी। टुडे मोर एंड मोर कंट्रीज आर ज्वाइनिंग नॉन लाइन मूवमेंट। यूनियन मीटिंग, यूनियन समिट, दैट इज एक मेन एक मीटिंग हेल्ड हुई, was held at Kuala Lumpur on 13th May 2003. For the last 4 decades, many incidents have taken place, and with the disintegration, मतलब रशिया के सोवियत यूनियन के बहुत सारे पार्ट्स बन गए और रशिया का पावर कम हो गया, वो सुपर पावर नहीं रही क्योंकि ऑलरेडी एक यूएसएसआर में से 15 कंट्रीज बनी थी। अमेरिका इमर्ज एज सुपर पावर, इट वाज द ओनली सुपर पावर नाउ इन द वर्ल्ड। Imperialism of England and France, that is called imperial policy, decreased to minimum in other countries. In this situation, non-line movement played a great role. तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया नॉन-लाइन मूवमेंट ने। The non-aligned countries with their non-aligned policy were successful in contributing towards world politics. अब नॉन-लाइन कंट्रीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, फॉर पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, फॉर पुअर कंट्रीज, टू स्टॉप द वॉर, फॉर डिसआर्मामेंट, बहुत सारे अच्छे काम किए non-line countries ने. The non-line movement was successful in showing off its moral impact for maintaining world peace. और non-line movement ने अपने उन्होंने अपनी अच्छाइयाँ दिखाई morally and told the world to maintain peace, supported the world to maintain peace, stop the war, maintaining human society, nationalism, that is love towards one's own country, as well as superpowers adopting an attitude of disarmament. और उन्होंने सुपर पावर्स को भी रिक्वेस्ट की टू रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। राइट, नाउ वी मूव ओवर टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, interesting once again. And Germany was the main reason behind both the World War that you already have seen in the previous chapters. And so main was in the Second World War, it was Hitler. So at the end of the day, we can say Germany was the main reason for both the world wars, which brought destruction to the whole world. And at the end of the Second World War, naturally, Germany faced a very humiliating, a very insulting defeat. And in the World War II, all its state administration economic collapsed completely, means it was destroyed. The whole country was destroyed. उसकी economically भी तुम economic development जो हुआ था वो भी totally destroy हो गया था. Monetary wise it was destroyed, and there was not a single party left in the whole of this country that could rule the nation. एक भी ऐसी पार्टी नहीं बस, जैसे हमारे यहाँ ना कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एंड लॉट मेनी डिफरेंट पार्टीज, तो वैसे एक पार्टी भी जर्मनी की ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी बची नहीं थी जो आके खड़ी रह जाए स्ट्रांगली और कहे कि अब से हम रूल करेंगे. सो जर्मनी वाज डिस्ट्रॉयड इन ऑल द फील्ड. In addition to that, there was a fear that Germany would once again pose a threat to the world, you know, if it emerges as a military power once again. और पूरी दुनिया को ये डर था, फिर वो अमेरिका सुपर पावर हो या यूएसएसआर हो या इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, सबको एक डर था, सबसे बड़ा डर, कि जर्मनी इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री मिलिट्रीली, इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, और नेशनलिस्टिक फीलिंग तो इतनी भरी हुई थी लोगों में बाय द at the time of Hitler and all the way he had ruled the people,
तो जर्मन लोग इतने स्ट्रांग थे कि पूरे वर्ल्ड को ये डर था कि अगर इसे, ऑलरेडी वो हार तो चुका ही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसे खड़ा ही ना होने दे, हम इतने टुकड़े कर दे इसके पहले से ही कि वो एक हो ही ना पाए, क्योंकि अगर अभी छोड़ दिया इसे तो ये फिर से खड़ा हो जाएगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन फ्यू मंथ्स मे बी, और एक बहुत बड़ा डर बन के खड़ा रहेगा, वो एक थ्रेट होगा फॉर द होल वर्ल्ड। सो लेट्स ब्रेक इट ऑफ। तो डिवाइड कर लिया गया 4 पार्ट में, और 4 नेशंस ने ले लिया उसे, यूएसएसआर को एक हिस्सा दे दिया जो उसकी तरफ का था, एक अमेरिका ने लिया, एक इंग्लैंड और एक फ्रांस। वैसे अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस साथ में ही थे, बट एज सच डिफरेंट कंट्रीज बट फ्रेंडली कंट्रीज, जबकि रशिया सबसे अलग था ऑपोजिट पार्टी में। सो द डिफीटेड जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 4 रूलिंग सेगमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 4 पार्ट, सेगमेंट मतलब पार्ट में डिवाइड किया गया। द सोवियत रेड आर्मी, मतलब कि रशिया की रेड आर्मी, इन अ लेटर फेज ऑफ द वॉर हैड कैप्चर्ड ईस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी। अब जितना भी ईस्टर्न पार्ट था वो ले लिया रशिया ने। Therefore, it was accepted that Eastern Germany would remain under their Soviet Union control या रशिया के कंट्रोल में. Whereas it was decided that America will take over the southwest part of Germany, France would take the area of Germany near France, and Britain would take the control areas of Germany that were the border of Belgium or bordering Belgium and Holland. तो 4 पार्ट हो गए. Now, America, France, and Britain started thinking about certain alternative arrangement. अब अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के दिमाग में ये आया कि चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसा कि किसी को चांस ही ना मिले जर्मनी को एक करने का, और हम सबसे स्ट्रांग बने. Meanwhile, an atmosphere of distrust and doubt had already started between two power blocs. तब तक तो रशिया और अमेरिका के बीच में डाउट स्टार्ट हो गए थे, एक दूसरे पे विश्वास करना बंद कर दिया था, कट्टर दुश्मनी मतलब 100% लेवल की बढ़ चुकी थी. America and other West European countries established Federal Republic of Germany. अब अमेरिका और बाकी के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने क्या बना, जर्मनी को क्या नाम दिया अपनी तरफ के जर्मनी को, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. This was ruled jointly by America, Britain, and France. On the other hand, Russia also declared East Germany as Democratic Republic of East Germany. Thus, after the war, 2 independent German states came into being or came into existence. तो जर्मनी के 2 हिस्से बन गए. एक था वेस्ट जर्मनी जो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के अंडर था, वो डेमोक्रेटिक था, और ईस्ट जर्मनी पूरा रशिया के अंडर, और उसमें रूल हुआ कम्युनिस्ट का. एज जर्मनी 3 वेस्टर्न पार्ट, वैसे तो वेस्ट के तो 3 पार्ट थे, बट वो तीनों फ्रेंडली थे, तो एक नाम दिया गया कॉमन, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी. तो ये जो 3 वेस्टर्न पार्ट थे जर्मनी के, दे वर यूनाइटेड. 3 एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स ऑफ बर्लिन आल्सो यूनाइटेड. अब जर्मनी और उसका एक हिस्सा बर्लिन, तो बर्लिन के भी 3 पार्ट बनाए, और सेम वे ईस्ट बर्लिन वाज टेकन बाय रशिया, बाकी के वेस्ट के 3 पार्ट बने, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जॉइंटली दे टुक ओवर. In a reaction to this, Soviet Union in April 48 declared Berlin blockade. Very interesting, learn it. Of course, very important at the same time. In April 1948, Soviet Union ने declare कर दिया बर्लिन ब्लॉकेड. एक बहुत ऊंची और लंबी दीवार बना दी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में. दिस ताकि कम्युनिस्ट रशिया के अंडर जो जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी, वो बहुत ही अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल था. वेयर वेस्टर्न जर्मनी पीपल वो सारे फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था. ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का राज चलता था, नो प्राइवेटाइजेशन, नो प्राइवेट कंपनीज, नो इंडस्ट्रीज, नो लग्जरी, नो डेवलपमेंट. तो वहां पे हमने देखा कि लोग विश कर रहे थे कि हम वेस्ट जर्मनी में जाके चोरी से वहां जाके सेटल हो जाएं. तो सोवियत यूनियन ने एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दी 2 जर्मनी के बीच में. दिस रिजल्टेड इनटू ग्रेट और ट्रेमेंडस एक्सट्रीम टेंशन, दैट इज कॉल्ड ट्रेमेंडस टेंशन बिटवीन सोवियत यूनियन एंड वेस्टर्न कंट्रीज. तो 2 पार्ट में दोनों साइड, सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका के बीच में एकदम टेंशन बढ़ गया. Later on, a high and 42-kilometer long wall separating West and East Berlin was constructed. The communist government tried to prevent thousands of East German citizens from jumping and entering into free atmosphere of Western Germany. Many people lost their lives in doing so. बहुत लोगों की जान गई इसमें.
क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में नहीं रहना था लोगों को, उनको वेस्ट जर्मनी में जाना था। बहुत सारे ईस्ट जर्मन सिटीजन ने वॉल को जंप करने की कोशिश की, फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ वेस्ट जर्मनी में सेटल होना चाहते थे, सो दे डिसाइड टू एंटर, बट while entering into this atmosphere they were killed and they lost their life after about 4 to 4.5 decades, मतलब 40-45 years के बाद Western Germany made an astonishing development, surprising development. Experts consider this as German miracle. Learn it. There was no remarkable change in the economic condition of East Germany. East Germany तो जैसी थी वैसी 40-45 years के बाद भी थी. ईस्ट जर्मन जैसे तुम BSNL ले लो, BRTS ले लो, कुछ फर्क नहीं आने वाला. गवर्नमेंट का जो है वो वैसा ही रहेगा, उसमें जल्दी डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता. Right? It is now that under Narendra Modi ji ke sarkar ke andar we see lots of development in government areas also, but otherwise usually फिर भी अगर तुम compare करो तो quality wise private and government की services और products में काफी फर्क होगा. That is what is East and West Germany. तो East Germany में only and only communist rule, only government का है वो ही हो. Farming तो government के लोग, industries तो government के लोग, no private shop, no private you can call transportation, no private communication like Jio and Airtel and all those things, and no private transportation, no private schools, no private hospitals, nothing. Everything government. Economic condition बेहतर हुई ही नहीं इस जर्मनी की. East German communist government crushed, that is destroyed. तो ये ईस्ट जर्मन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर लिए लोगों की ड्रीम्स, होप्स फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब ईस्ट जर्मनी के लोगों को चाहिए था पॉलिटिकल फ्रीडम, अपनी कंट्री में डेवलप होना था लाइक वेस्ट जर्मनी, अपने ही भाई बहनों की तरह. उनको रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए थी, लेकिन उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ये नहीं कर पाई. Till 1990, many important and far-fetching changes took place in international politics. Due to many reasons, the Cold War among superpower also ended. कई रीजन ऐसे थे जिसकी वजह से कोल्ड वॉर स्टॉप हो गया between two superpower, yes, between America and Russia. This year's witnessed cracks, मतलब breaks in otherwise unbreakable Soviet Union. Impregnable मतलब सोवियत यूनियन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ह्यूज कि अदरवाइज तो ब्रेक होता ही नहीं, लेकिन किसी रीजन से उसमें क्रैक्स आने लगे तो उसके 15 हिस्से बन गए. Ultimately, there is finally Soviet Union was disintegrated, divided. As a result of it, on 3rd October 1990, both the Germany united. क्योंकि सोवियत यूनियन के खुद के ही अगर 15 पार्ट बन गए, जैसे इंग्लैंड खुद जीती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो उसका ध्यान उसके अंडर जो कंट्रीज थी लाइक इंडिया एंड अफ्रीकन नेशन, अदर एशियन ने, जिसपे उसने 200 साल से ज्यादा रूल किया, उस पर उसका ध्यान हट गया. हमने और जोर शोर से अपना सत्याग्रह चलाए, लड़ाइयां चलाई, वी अचीव्ड अ फ्रीडम. वैसे सोवियत यूनियन के अंदर अंदर जो प्रॉब्लम्स थे, तो कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो गई इनटू 15 पार्ट्स, तो 15 कंट्रीज बनी एक सोवियत यूनियन में से. तो नेचुरली सुपर पावर तो सोवियत यूनियन रहा ही नहीं, तो ईस्ट और वेस्ट और उसका होल ईस्ट जर्मनी पे से निकल गया. तो ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी नाउ यूनाइटेड. वो वॉल को ब्रेक कर दिया उन्होंने, बर्लिन वॉल को. पीपल ब्रोक डाउन दी बर्लिन वॉल which was a symbol of German division. People considered the destruction or breaking or demolition, crushing down of the Berlin Wall as the end of the Cold War period and celebrated the occasion wholeheartedly. फिर तो बहुत celebration हुए. Today, this unified Germany has turned out to be the strongest economic power in Europe. After 1990, they have made a great, there is tremendous effort to be the strongest economic nation in the last decade. Today, it has become one of the most important and leading nations in the European nation. Now, this very interesting part, we continue next time. So, till then, revise it and see you soon.